Hello students, I welcome you in the class of Political Science. The chapter name is Constitutional Design. In the previous videos, we have discussed about the Constitution, why do we need Constitution, and what were the problems to form the Indian Constitution and the path of Constitution and Constituent Assembly. In this video, we will discuss about the preamble of Indian Constitution. Preamble, it is the introduction of the Indian Constitution. It can be soul of our Indian Constitution. The basic principle of the Constitution of India written in the preamble, what basis the Constitution of India written, the main ideologies written in the preamble. Now you also write the preamble in your notebook. It is the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. Now, on the key points of the preamble, we will discuss. First, the first line written, we the people of India. We the people of India. It means the Constitution of India written by the people of India through the representative. थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लिखा गया है वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लिखा गया है, और नॉट द हेरिडिटरी. नाउ द फर्स्ट मेन कीवर्ड्स ऑफ द preamble, sovereign. Sovereign, sovereign means in Hindi Samprabhu. It means the people of India has the supreme right. The people of India has supreme right to make internal as well as external policies of our nation, and no external power can dictate government of India. It means सोवरन मीन्स संप्रभु, मतलब इंडिया के लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने देश के आंतरिक मामलों के लिए और बाहरी मामलों के लिए, फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए, फॉरेन अफेयर्स के लिए पॉलिसीज़ बनाए, और दुनिया की कोई बाहरी ताकत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडिया की गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती है हमारे आंतरिक या बाहरी मामलों में. इट इज़ called the sovereign. Next, socialist. Socialist, समाजवाद. Socialist means the government should acquire
the land and the factories, industry, the ownership, government should be owner of land, cultivated land and industry, and the wealth of the country should be equally divided. Among the people. It means देश के अंदर जो भी वेल्थ है, जो कल्टीवेटेड लैंड है और इंडस्ट्री है, उसकी मालिक गवर्नमेंट हो और लोगों के बीच धन संपदा को बराबर बांटा जाए, बराबर की हिस्सेदारी हो, जिससे देश के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आए, सामाजिक और आर्थिक समानता आए। ये मतलब है सोशलिस्ट का। इसका मतलब क्या है कि देश के अंदर जो भी वेल्थ है, जो भी इंडस्ट्री है, लैंड है, उसकी मालिक गवर्नमेंट हो और देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको बराबर की हिस्सेदारी हो इंडस्ट्री में और लैंड में, और जिससे कि सामाजिक और आर्थिक समानता आए, जो इनइक्वालिटीज हैं वो दूर हों। इट इज द सोशलिस्ट। नेक्स्ट की फीचर सेकुलर। इन हिंदी धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर मीन्स there will be no religion of state। इसमें भारत जो राज्य है उसका अपना कोई राज्य नहीं होगा, एंड द गवर्नमेंट should give the equal respect to all religions। and there should be no discrimination on the basis of religion। it means धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और भारत जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, और जो गवर्नमेंट है वो सारे धर्मों को मानने वालों को समान रेस्पेक्ट देगी, उनको सम्मान देगी। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक। it means the people of India elect their government। जो भारत के लोग हैं वो अपनी सरकार चुनेंगे, and the government should be accountable to the people of India। और गवर्नमेंट जो होगी वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा, और जो सरकार उन्होंने चुनी है वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी। नेक्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक इन हिंदी गणराज्य। इट मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडिटरी। मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है, जो देश के या राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति है, वो चुना हुआ होगा,
वो वंशानुगत नहीं होगा, हेरिडेटरी नहीं होगा, इसको कहते हैं रिपब्लिक। नेक्स्ट, जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। इट मीन्स citizen cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. Justice means कि there should be no difference, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा कास्ट के आधार पर, जाति, रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर और जेंडर, महिला है या पुरुष, जेंडर के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। एंड सोशल इनजस्टिस हैव टू बी रिड्यूस्ड। इट मीन्स जो समाज में इनजस्टिस है, इनइक्वलिटीज़ है, असमानता है, उसको दूर करने का काम किया जाएगा। एंड गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पीड़ित हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको ऊपर उठाने का काम करेगी। ये है जस्टिस। नाउ लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स देयर शुड बी नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किसी के भी साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा जो अनरीजनेबल हो, प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे किसी के थॉट्स पे या व्यूज पे या फिर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। इट मीन्स लिबर्टी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे जो तर्क के आधार पर सही ना हो। लोगों को अपने विचार, अपने जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं और जो सोच है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बात को कहने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा। नाउ इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता। इक्वालिटी मीन्स समानता, के पीपल हैज द इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड देयर शुड द पीपल ऑफ इंडिया इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन्स कानून की नज़रों में सब बराबर होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और गवर्नमेंट का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो देश में रहने वाले सब लोगों को समान अवसर, एक जैसे अवसर प्रदान कराएगी। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी के all the people of India believe that they are the member of the same family. Fraternity means भाईचारा। देश में रहने वाले सब लोग ऐसा भाव रखेंगे, ऐसा सोच रखेंगे कि वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। एंड नो वन शुड ट्रीट एज फेलो सिटीजन इंफीरियर। और किसी के साथ
कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा कि वो लो स्टेटस का है या लो रैंक का व्यक्ति है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने देगा। इन्फीरियर मीन्स लो स्टेटस और लो रैंक। तो फ्रेटर्निटी मीन्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया थिंक लिव टुगेदर लाइक द फैमिली मेंबर एंड नो वन ट्रीट एज द फेलो सिटीजन इन्फीरियर। और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे सदस्य को ऐसे व्यवहार नहीं करेगा जैसे वो नीची जाति का है या बड़ा लो स्टेटस का व्यक्ति है। दीज आर द की फीचर्स ऑफ preamble of the Indian Constitution. In this Constitution, the main key features: democratic, republic, sovereign, secular, justice, liberty, equality, and fraternity. Now, this chapter is complete now. So, thank you very much.